الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. باب الجعالہ وہی ان یقول من رد لقطتی او ضالتی او بنا لی هذا الحائط فله كذا فمن فعل ذلك استحق الجعل لما روى ابو سعید رضی اللہ عنہ ان قوما لدغ رجل منهم فاتوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برأ فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية خذوا واضربوا لي معكم بسهم ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. باب الجعالہ، جعالہ یعنی انعام یا اجر کا باب، انعام یا اجر کا باب. وہی ان یقول، اور جعالہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہے، اور جعالہ یہ ہے کہ وہ کہے من رد لقطتی او ضالتی، جو میری گری پڑی چیز لوٹا دے یا میرے گم شدہ جانور کو لا دے. جو کوئی میری گری پڑی چیز لوٹا دے یا میرے گم شدہ جانور کو لے آئے، او بنا لی ھذا الحائط، یا میرے لیے اس دیوار کو بنا دے یا میری اس دیوار کو تعمیر کر دے، فلہ کذا، تو اسے اتنا انعام ہوگا یا اسے اتنا معاوضہ دیا جائے گا. فلہ کذا، تو اسے اتنا اور اتنا ہوگا، یعنی اتنا انعام یا اتنا معاوضہ ہوگا. فمن فعل ذلك استحق الجعل، جو وہ کام کرے تو وہ انعام کا مستحق ہوگا، جو وہ کام کرے وہ انعام یا معاوضے کا مستحق ہوگا. لما روا ابو سعید، اس حدیث کی وجہ سے جسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کی بنیاد پر جسے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، ان قوما لدغ رجل منهم، کہ کسی قوم کے کسی آدمی کو ڈنک مارا گیا یا ڈسا گیا. کسی قوم کے کسی آدمی کو کسی بچھو نے ڈنک مار دیا، اگر ہم اس روایت کی وضاحت کرنا چاہیں تو، لیکن معنی کے حساب سے قوم کے کسی شخص کو ڈنک مارا گیا. فاتوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس آئے. فقالوا، اور ان سے کہا، هل فیکم من راق، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے کوئی چیز مقرر نہ کرو، ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے کوئی معاوضہ مقرر نہ کرو. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، تو انہوں نے بکریوں کا ایک حصہ ان کے لیے مقرر کیا، تو انہوں نے بکریوں کا ایک حصہ ان کے لیے مقرر کیا. فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب، تو ان میں ایک آدمی سورہ فاتحہ پڑھنے لگا اس مریض پر، تو ان میں ایک آدمی اس مریض پر سورہ فاتحہ پڑھنے لگا. وَيَرْقِي، اور اس کو پھونکتا تھا. وَيَدْفُلُ، اور اس پر دم کرتا تھا. یدفلو مانے پھونکنا، اس طرح پھونکنا کہ انسان کے تھوک کے کچھ ہلکے سے چھینٹے بھی اس کے ساتھ آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں یدفلو. تو وہ اس کو دم کرتا تھا اور پھونکتا تھا.
हत्ता बरा, यहाँ तक कि वो शिफा याब हो गया, यहाँ तक कि वो ठीक हो गया। फ़अख़ज़ुल गनमा, तो उन लोगों ने बकरियां ले ली। वसालू अन ज़ालिका नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में दरियाफ्त किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में दरियाफ्त किया। फ़क़ाल, आपने फरमाया, वमा युद्रिकुम अन्नहा रुक़या, तुम्हें कैसे पता चला कि वो रुक़या है, यानी वो सूरत, जी हाँ सूरह फातिहा, तुम्हें कैसा पता चला कि वो रुक़या है, यानी उसके जरिए फूंका जाता है। खुज़ू, ले लो बकरियां, वज़रिबू ली माकुम बिसहमिन, और उसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ, और उसमें मुझे भी हिस्सा लगाओ। वलविल तक़तल लुक़ता, और अगर वो उस गिरी पड़ी चीज को पाले, क़ब्ल अन यबलुगहुल जुअला, उसको इनाम की खबर पहुंचने से पहले, उसको इनाम या मुआवजे की खबर मिलने से पहले, अगर वो इस गुमशुदा चीज को या फिर गिरी हुई चीज को पाले इनाम की खबर मिलने से पहले, लम यस्तहिक़, तो वो मुस्तहिक नहीं होगा, तो वो उस मुआवजे का मुस्तहिक नहीं होगा। बाबुल ज्वाला, ज्वाला का बाब, ज्वाला के माने हम या तो इनाम करेंगे या तो मुआवजा करेंगे, वो अज्र करेंगे जो उस काम के बदले में उसे मिलता है। ज्वाला किसे कहते हैं? मजदूरी नहीं कह सकते, मजदूरी में इसमें फर्क है, वो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। ये मुआवजा है या फिर जो है इनाम है। ये ज्वाला किसे कहते हैं, लुगत में किसे कहते हैं, मैंने भेजा आप लोगों को ताकि आप लोगों को लिखने में पूछने की जरूरत ना पड़े। इस्मुन लिमा युजअलु, इस्मुन लिमा युजअलु लिल इंसानी अला फिअलि शै, इस्मुन लिमा युजअलु लिल इंसानी अला फिअलि शै, ज्वाला उस चीज का नाम है जो किसी इंसान को दिया जाता है किसी काम के करने पर। ज्वाला उस इनाम या मुआवजे को कहते हैं जो किसी इंसान को किसी काम के करने पर दिया जाता है, ठीक है। और शरीयत में किसे कहते हैं? जालू मालिन मालूमिन लिमन यामलु लहू अमलन मुबाहन वलौ मजहूलन औ मुद्दतन वलौ मजहूलतन, जालू मालिन मालूमिन लिमन यामलु लहू अमलन मुबाहन वलौ मजहूलन औ मुद्दतन वलौ मजहूलतन। जालू मालिन मालूमिन, मालूम माल मुकर्रर करना या मालूम माल देना, ऐसा माल देना जो मुकर्रर हो, यानी हम ये कह सकते हैं कि मुकर्ररा माल देना या मुकर्ररा माल मुकर्रर करना। लिमन यामलु लहू, उसको जो उसके लिए वो काम करे, मुकर्ररा माल मुकर्रर करना उस शख्स के लिए जो उस काम को अंजाम दे। कौन सा काम? आमलन मुबाहन, जो उसके लिए उस मुबाह काम को अंजाम दे। वलो मजहूलन, वो काम खा गैर मालूम हो, यानी वो काम खा मालूम हो या गैर मालूम हो। और मुद्दा, और फिर वो काम उस मुद्दत में अंजाम पाए। वलो मजहूलतन, खा वो मालूम हो या गैर मालूम हो, खा वो गैर मालूम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी मुबाह काम के इवज में किसी मुकर्ररा माल को देना, किसी मुबाह काम के बदले में मुकर्ररा माल देना, वो काम खा मालूम हो या मालूम ना हो, और वो मुद्दत जिसमें वो काम अंजाम पाए खा मालूम हो या मालूम ना हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहे कि मेरी फला चीज खो गई है, या मेरा एक ऊंट भाग गया है, या फिर ये मेरे घर में इस दीवार को तामीर करना है। जो उस चीज को ढूंढ कर लाएगा या मेरे जानवर को वापस लाएगा, ये मेरे लिए इस दीवार को तामीर कर देगा, तो मैं उसको जो है 1000 रियाल दूंगा, ठीक है। तो 1000 रियाल जालू मालिन मालूम, मुकर्ररा माल देना, मुकर्ररा माल मुकर्रर करना जरूरी है, तो 1000 रियाल मुकर्रर करे। लिमन यामलु लहू अमलन मुबाहन, उसके लिए जो मुबाह अमल करे। अब ये गुमशुदा चीज को लाना या ऊंट को जो भाग गया है ढूंढ कर लाना, पकड़ कर लाना, या फिर जो है वो दीवार तामीर करना, मुबाह काम है। तो उस मुबाह काम के इवज में उस माल को मुकर्रर करना, ठीक है।
وہ کام خواہ معلوم ہو یا مجہول ہو. وہ کام خواہ معلوم ہو یا مجہول ہو کا مطلب یہ ہے کہ اب جو وہ آدمی جو ڈھونڈے گا گمشدہ چیز کو یا اس جانور کو لائے گا، اب وہ نہیں جانتا کہاں ہے، وہ نہیں جانتا. اور پھر مدت بھی معلوم ہو سکتی ہے، غیر معلوم ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر دیوار کے لیے ہو سکتا مدت معلوم ہو، کسی دیر میں دیوار کو تعمیر کر سکتا ہے، لیکن جانور کو ڈھونڈنا یا گمشدہ چیز کو لانا اس میں مدت بھی غیر معلوم ہے. تو اس میں جو ہے بنیادی طور پر دو باتیں ہو گئی. کس میں؟ جعالہ میں. جعالہ میں بنیادی طور پر دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس میں مال مقرر ہونا چاہیے. کام کے بدلے میں جو بدلہ ملے گا، کام کے بدلے میں جو اس کو اجر دیا جائے گا یا معاوضہ دیا جائے گا یا انعام دیا جائے گا، وہ مقرر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ کام مباح ہونا چاہیے. وہ کام مباح ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ جو آدمی فلاں شخص کو مارے گا یا اسے قتل کرے گا یا پھر فلاں شراب کی بوتل جو ہے میرے لیے لائے گا یا فلاں گانا گائے گا، اس کو میں اتنا انعام دوں گا، تو وہ جعالہ نہیں ہے، کیونکہ عمل مباح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، عمل مباح ہونا چاہیے. مباح ہمارا جائز ہونا چاہیے. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جعالہ میں اور جس کو ہم مزدوری کہتے ہیں، جس کو اجرت کہتے ہیں، اس میں کچھ فرق پائے جاتے ہیں. دونوں میں پہلا فرق یہ ہے کہ جعالہ میں کام معلوم ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ وہ اونٹ کو ڈھونڈ کر لانا اور پھر جو ہے وہ اسی طرح گمشدہ چیز کو لانا، یہ چیزیں غیر معلوم ہیں، پتہ نہیں کہاں ہیں. لیکن اس میں باقاعدہ اجرت اور مزدوری پر جس کو مقرر کریں گے، باقاعدہ اس کو بتانا ہوگا کہ یہ چیز کرنا ہے، اس کو وہاں کام معلوم ہونا ضروری ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جعالہ میں کام کی مدت معلوم نہیں ہوتی، لیکن مزدوری میں مدت معلوم ہوتی ہے. یہ کام اتنی دیر میں ہوگا یا اتنے وقت میں ہوگا. مثال کے طور پر یہ دیوار ہے، میرے کو 2 دن میں بنا کر دینا ہے. اب جعالہ میں یہ ہے کہ یہ دیوار بنا دے گا، آپ آج بنائے، کل بنائے، ایک ہفتے بنائے، مدت مقرر نہیں. لیکن یہ تو پتا ہے کہ دیوار بنانی ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اونٹ کو ڈھونڈنا ہے، وہ پھر کیسے نام؟ ہاں، لیکن اونٹ کہاں ہے وہ نہیں پتا نا. اونٹ کہاں ہے وہ نہیں پتا. دیکھیے، ایک تو اونٹ کہاں ہے وہ پتا نہیں، پھر گمشدہ چیز کہاں گری ہے وہ نہیں معلوم، اور مدت نہیں معلوم. لیکن مزدوری میں آپ کو بتانا پڑے گا کہ باقاعدہ ہر چیز مقرر ہوگی. اچھا، تیسرا فرق یہ ہے کہ جعالہ میں کام کرنے والے پر کام کرنا ضروری نہیں ہے. یہ جو عقد ہے جعالہ کا، اس میں دونوں کو اختیار ہے. لیکن اجرت اور مزدوری کا جو عقد ہے اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، رضامندی ضروری ہوگی. مثال کے طور پر کسی آدمی نے کہا کہ میرے فلاں اونٹ کو ڈھونڈ کر لاؤ تو میں تم کو اتنا انعام دوں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ 1-2 دن ڈھونڈا اور ڈھونڈنے کے بعد بولا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہ رہا، تو اس کو اجازت ہے. اور پھر یہ بھی بولے کہ ٹھیک ہے، پہلے جو ہے اعلان کرے، اس کے بعد پھر جو ہے کام شروع کرنے سے پہلے بولے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں خود ڈھونڈ لوں گا. تو یہ ایسا عقد ہے جس کو پورا کرنا لازم نہیں ہے. جعالہ ایک ایسا عقد ہے جسے پورا کرنا لازم نہیں ہے، جبکہ اجارہ جس کو کہتے ہیں یا اجرت یا مزدوری جسے کہتے ہیں، اس کو پورا کرنا ضروری ہے. دونوں کی رضامندی کے بغیر اسے فسخ نہیں کیا جا سکتا. ایک دوسرے کے رضامندی ضروری ہے اس میں اسے فسخ کرنے میں. تو انشاءاللہ جب اس کا باب آئے گا تو ہم اس کے بارے میں تفصیل پڑھیں گے. تو بنیادی طور پر جعالہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جو معاوضہ ہے وہ مقرر ہوتا ہے، لیکن کام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. معلوم بھی ہو سکتا ہے جیسے دیوار ہے، لیکن نہیں معلوم بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اونٹ کہاں ہے یا پھر دوسری چیز کہاں ہے. اور پھر مدت بھی معلوم ہونا اس میں ضروری نہیں ہے، معلوم بھی ہو سکتی، غیر معلوم بھی ہو سکتی، دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. وہ تو بہت ضروری ہے، وہ تو ضرور، کیونکہ پہلی چیز تاریخ میں دیکھ جعل مال معلوم ہے، اس میں پھر کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اس کے بغیر یہ اب نہیں ہو سکتا. دھوکہ ہے نا وہ، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مال معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ خوش کر دو ہمیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. تو وہ تو اس کو مزدوری مل رہی ہے، لیکن وہ جعالے کے طور پر اس نے کی. ایک تو ایک یہ کہ مزدوری کے طور پر اسے مقرر کریں، ایک ایگریمنٹ کے طور پر کہ تم ہی بناؤ گے. اس میں کیا ہے، وہ اعلان کریں کوئی بھی بنا دے جعالہ میں، لیکن مزدوری میں کیا ہے، اس سے مقرر، اس سے باقاعدہ اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا کہ تم بناؤ گے. ٹھیک ہے، آپ نے اس میں جو ٹھیکہ دیتے ہیں یہ تو نہیں ہے، اس میں ٹھیکہ تو مزدوری کے طور پر ہی ہے نا. کہہ سکتے ہیں نا، جیسے ہم گھر میں بچوں کو کہیں کہ
मेरा पेन हो गया है, जो उसे ढूंढेगा मैं उसको 10 से आलू। ये कारण है हो सकता है, हो सकता आ जाए इनाम के तौर पर, इनाम के तौर पर आ सकता है। किचन की सफाई की बच्चों को जो करेगा मैं इतने पैसे दूंगी, तो उसमें कोई भी बच्चा मतलब वो कर सकता है। लेकिन मोबाइल किताब से, सुन्नत से और फिर अकल से ये साबित है ज्वाला। किताब से जैसा कि सूरह यूसुफ में अल्लाह पाक ने फरमाया कि वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम, वलिमन जाअ बिही हिम्लु बईर व अना बिही ज़ईम, जो इसको लेकर आएगा उसको एक ऊंट का बोझ दिया जाएगा और मैं उसकी किफालत में उसका जिम्मेदार हूँ। यानी जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जाने लगे तो उसके पीछे जो है, उनके पीछे एक रिवायत के मुताबिक खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक रिवायत के मुताबिक उनके जो पुलिस के जिम्मेदार थे वो पहुंचे और कहने लगे कि बादशाह का प्याला गुम हो गया है। वलिमन जाअ बिही, और जो उस प्याले को लेकर आएगा तो उसको एक ऊंट का बोझ, यानी एक ऊंट पर जितना अनाज रखा जाता है उतना दिया जाएगा और मैं उसका जिम्मेदार हूं, मैं उसका कफील हूं कि जरूर दूंगा। तो ये ज्वाला है। बादशाह का प्याला खो गया, वो खोए हुए प्याले को लौटाना, लेकर आना, बताना किसके पास है, तो उसको जो है इनाम मुकर्रर है, हिम्लु बईर, उसका मुआवजा मुकर्रर है। तो ये ज्वाला है, ये ज्वाला है। उसी तरह सुन्नत से उसकी दलील ये हदीस है जो तफसील के साथ आ रही है हमारे पास। सुन्नत से उसकी दलील जो है वो खुद ब खुद इसमें आ रही है। और जहां तक अक्ल से उसका ताल्लुक है तो इंसान बाज़ औक़ात कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें वो दूसरों का मोहताज होता है, और किसका मोहताज होता है वो मुकर्रर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर उसकी कोई चीज गुम हो गई है या उसका कोई जानवर भाग चुका है, तो उस काम को वो खुद अंजाम नहीं दे सकता क्योंकि पता नहीं वो कहाँ है, और फिर किसी एक शख्स को मुकर्रर नहीं कर सकता क्योंकि ऐलान करेगा तो हो सकता है इधर उधर आसपास में जितने भी लोग हैं वो सब उस पर तवज्जो देंगे। तो हाजत इस बात का तकाजा करती है कि इसकी इजाजत दी जाए। तो शरीयत ने लोगों की हाजत का एतबार करते हुए और फिर ऐसे कामों की वजह से जिसमें किसी भी ऐसे शख्स की जरूरत होती है जो उस काम को अंजाम दे बगैर ये कि उस शख्स को मुकर्रर किया जाए कि तुम ये काम करो, तो इसलिए इसको शरीयत ने जायज कहा है। अब किताब की तरफ आइए। वही अन यकूला, और वो ज्वाला ये है कि वो कहे। ज्वाला की तारीफ मौलिक रहमतुल्लाह अलैह मिसालों के जरिए करते हैं, क्योंकि मिसालों के जरिए कोई तारीफ होती है तो वो अच्छी तरह जहन नशीर हो जाती है। तो तारीफ अल्फाज के बजाय जो तारीफ अल्फाज में जो तारीफ होती है वो हम बयान कर चुके हैं शुरू में, लेकिन उसको समझने के लिए मौलिक रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल दी है। और वो मिसाल क्या है? वही अन यकूला, और वो ये है कि वो कहे मन रद्द लुक़तती, जो मेरी गिरी हुई कोई चीज लौटा देगा, लेकर आएगा, और दालती, या मेरे भागे हुए किसी जानवर को लेकर आएगा, और बना ली हाजल हाइता, या दीवार मेरी ये तामीर कर देगा, फलहू कज़ा, तो उसे इतना मुआवजा मिलेगा। ये ज्वाला है, ठीक है। फमन फ़अल ज़ालिका इस्तहक़्क़ल अमल, जिसने भी वो काम कर लिया इस्तहक़्क़ल ज्वाल, तो वो उस मुआवजे का मुस्तहिक़ हो। अब कोई भी कर सकता है वो काम, क्योंकि ऐलान कर दिया गया जो करेगा उसको मिलेगा। जैसे आप 10 आदमी तलाश कर रहे हैं, उसके गुमशुदा चीज को 10 आदमी तलाश कर रहे हैं, लेकिन जिसको मिलेगी उसी को मुआवजा मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसने तो उनको नहीं कहा कि तुम करो, जिसने भी कहा लाएंगे तो उसको वो इनाम देगा, उसके साथ नहीं है। हाँ, तो जो करेगा उसी को मिलेगा। इंडिया में जो पुलिस स्टेशन में लगाया हुआ रहता है कि ये एचआर जो है पकड़ा है तो इसको मिलान देंगे, ये भी इसमें अक्सर आ सकता है हाँ, आ सकता है। अलबत्ता वो लोग तय कर लेते हैं आपस में कि हम 10 आदमी मिलकर ढूंढेंगे या फिर 10 आदमी मिलकर दीवार बनाएंगे, तो वो जो इनाम मुकर्रर किया गया है वो उनको मिलेगा और 10 आपस में तकसीम कर लेंगे। तो जिसने भी वो काम कर दिया वो अजर का मुस्तहिक होगा, इल्ला ये कि अगर कुछ आदमी तय करते हैं आपस में कि हम सब मिलकर करेंगे तो इनाम उनको मिलेगा, वो इनाम क्या करेंगे वो लोग आपस में तकसीम कर लेंगे। लिमा रवा अबू सईद, उसकी दलील अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु की वो हदीस है। सुन्नत से दलील, तो किताब से जो दलील है वो गुजर चुकी है। सुन्नत से दलील क्या है? अन्ना कौमन लुदिगा रजुलुन मिनहुम, के एक कौम, उनके एक आदमी को डसा गया या डंक मारा गया। इसकी तफसील हदीस में आई है। ये हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम और हदीस की सारी किताबों में तकरीबन मौजूद है कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं और वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की एक जमात भेजी थी किसी मुहिम पर। वो अरब के किसी कबीले के किसी मकाम पर रुके और उन लोगों ने उनसे मेहमान नवाजी तलब की, क्योंकि वो वहां रुके थे और कबीला वहां रहता था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम तुम्हें कोई मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। तो उसके बाद उनके किसी सरदार को, उनके सरदार को एक बिच्छू ने डंक मार दिया
और वो उस जहर को निकालने के लिए जितनी कोशिशें वो कर सकते थे, जो उनके पास मारूफ थी, वो उन्होंने कर ली, दवा और इलाज की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो वो लोग फिर सहाबा किराम के पास आए और कहने लगे कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आदमी है जो उसका इलाज कर सके, या फिर उस पर कोई दवा कर सके जो उसका इलाज कर दे? तो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हाँ मैं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने हमारी मेहमाननवाजी नहीं की, इसलिए मैं इस शर्त पर करूंगा कि तुम हमारे लिए कोई चीज मुकर्रर करो उसके बदले में जो हम काम करेंगे। तो सहाबा, तो उन लोगों ने ज्वाला तलब किया, एक मुबाह काम के लिए उन्होंने क्या किया, बाकायदा ज्वाला के तय करने के लिए कहा। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, इतनी बकरियां हम देंगे। रिवायत से मालूम होता है कि वो 30 बकरियां थी। 30 बकरियों पर यह बात तय हुई कि अगर वो उसका इलाज कर देते हैं, क्योंकि ज्वाला में अजर का मुस्तहिक वही उसी वक्त बनेगा जबकि काम होगा वो, तो इलाज कर देते हैं तो 30 बकरियां उनको मिलेंगी। तो वो अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु खुद थे, तो वो सूरह फातिहा पढ़ते और उस पर फूंक मारते, सूरह फातिहा पढ़ते फूंक मारते, तो उसके बाद वो ऐसे हो गया जैसे कोई चीज उसको बंधी हुई थी और वो खुल गई, बिल्कुल वो ठीक हो गया। तो उनको वो बकरियां मिल गई। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि अब तकसीम कर लेंगे हम आपस में। तो अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं, यहाँ तक कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बारे में दरियाफ्त नहीं कर लेते उस वक्त तक हम ये काम नहीं करेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने उनसे सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये सूरत जो है ऐसी है जो अमराज से शिफा देने वाली है? तो यानी सहाबा किराम का जो इज्तिहाद था वो इतना अजीम था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से पहले भी वो लोग जान गए थे कि ये सूरत इस काम के लिए उनके मददगार हो सकती है। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को इत्मीनान दिलाने के लिए कि ये वो जायज चीज है, उनके दिलों के इत्मीनान के लिए आपने कहा कि इसमें न सिर्फ ये कि तुम लोग इसे आपस में तकसीम कर लो, बल्कि इसमें मेरा भी हिस्सा लगाओ। तो इस हदीस के कई फवाइद हैं, हम उस पर गौर करेंगे मुख्तसर तौर पर, लेकिन पहले इस किताब में जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे। तो अब इस तफसीलात के साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए कि उनके किसी आदमी को डंक मारा गया, यानी उनके सरदार को एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तो उन लोगों ने कोशिश की, उसके बाद फातो असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास आए। फ़क़ालू हल फ़ीकुम मिन राग़, क्या तुम में कोई झाड़ फूंक करने वाला है? फ़क़ालू ला, उन्होंने कहा कि नहीं, हत्ता तजअलू लना शैअन, यहाँ तक कि तुम हमारे लिए कोई मुआवज़ा मुक़र्रर कर दो। फ़जअलू लहुम क़तिय्यन मिनल गनमी, तो उन्होंने बकरियों का एक हिस्सा यानी 30 बकरियां उनके लिए मुक़र्रर की। फ़जअल रजुलुन मिनहुम यक़रउ बिफ़ातिहतिल किताबि व यरक़ी यदख़ुलु, तो उसमें एक आदमी यानी अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद उस पर उसको सूरह फातिहा पढ़ते रहे और उस पर फूंकते रहे, दम करते रहे, हत्ता बरा, यहाँ तक कि वो शिफायाब हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया। फ़अख़ज़ुल गनमा, तो वो लोग उन लोगों ने बकरियां ले ली। वसालू अन ज़ालिका अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा तो आपने कहा कि वमा युदरिकुम अन्नहा रुक़या, तुम्हें कैसे पता चला कि वो रुक़या है, यानी उसको उसके जरिए शिफा मिलती है, उसको झाड़ फूंक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खुज़ू वज़रिबू ली माकुम बिसामिन, तो ले लो और मेरा भी उसमें हिस्सा लगाओ। इस हदीस में बहुत से फवाइद हैं। बुनियादी तौर पर इस बात से इस हदीस का जो ताल्लुक है वो यही है कि जुआला यानी एक रकम मुकर्रर की जा सकती है मुबाह काम के बदले में। तो इसमें ये भी मालूम होता है कि कोई अगर शख्स किसी के साथ बुरा सलूक करे तो उसके साथ उतना बुरा सलूक किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने मेहमाननवाजी करनी थी, उनको मेहमाननवाजी नहीं की तो वो लोग उस वक्त तक राजी नहीं हुए उनके इलाज के लिए जब तक कि वो लोग उसका मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं होते। और ये भी मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरान और हदीस के सिलसिले में या दीनी इल्म के सिलसिले में कितनी समझ रखते थे कि उन्होंने पहचान लिया था कि सूरह फातिहा रुक़या की सूरत है। और इसी तरह इसमें ये भी मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा की किस तरह मदद की, और ये भी मालूम होता है कि गैर मुस्लिम पर भी रुक़या किया जा सकता है। गैर मुस्लिम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इलाज के दूसरे असबाब पैदा किए हैं, जैसा कि सब लोगों के लिए इलाज के बहुत से असबाब है, उसमें गैर मुस्लिम को भी अगर कोई शख्स चाहे, खासतौर पर उस वक्त जबकि हम देखें कि उसे खरीद किया जा सकता है या उसे इस्लाम की दावत दी जा सकती है, तो उसके लिए भी पढ़ा जा सकता है, उसको भी शिफा मिलेगी, जैसे कि यहाँ उसको मिली, उनके सरदार को मिली कि उनके पढ़ने से जो है अगरचे कि वो गैर मुस्लिम था लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे उसके जरिए शिफा अता फरमाई। जी मतलब कि वो जज़ा वो सय्यतुन मिस्लिहा, बुराई का बदला जितना है उतना दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन लोगों ने मेहमाननवाजी नहीं की तो ये इनकार कर सकते हैं कि हम आपका इलाज भी नहीं करेंगे। वलविल तक़तल लुक़ता क़ब्ल अन यबलुग़हु, और अगर कोई शख्स किसी की कोई गिरी हुई चीज पाले मुकर्रर इनाम की इत्तला उसे होने से पहले,
वो इनाम उसने मुकर्रर किया है, उसकी इत्तला होने से पहले किसी शख्स को मिल गया पालेगा, तो वो लन यस्तहिक था, तो वो उस इनाम का मुस्तहिक नहीं होगा, क्योंकि उसको शर्त नहीं मिली। हाँ उसकी शर्त नहीं मिली, क्योंकि और फिर उसको देना अलबत्ता उसके लिए मुस्तहब जरूर है। मिसाल के तौर पर जैसा कि एक हदीस में आया कि मन सना इलैकुम मारूफन फकाफिऊह, जो तुम्हारे साथ कोई भला काम करे तुम उसका बदला दो। तो इस हदीस की रोशनी में अगर वो कुछ देना चाहे तो उसके लिए मुनासिब है, लेकिन देना ये आपके मुताबिक नहीं है, देना जरूरी नहीं है उसके लिए, क्योंकि किसी के जरिए अगर पहुंचे तो फिर तो हो गया ना। हाँ किसी के जरिए पहुंच गया तो ठीक है। जो चीज उसको मिल गई तो देना उतना जरूरी नहीं है, क़ब्ल अन यब्लुगहु, उसकी इत्तला से मिलने से पहले, इसके लिए इनाम मुकर्रर किया गया है इसकी इत्तला मिलने से पहले, लेकिन अगर इत्तला मिलने के बाद वो उसमें शामिल हो गया तो फिर उसका मुस्तहिक होगा। नियत ये की कि जो भी मेरी चीज ले आएगा मैं उसको दे दूंगा, फिर तो देगा वो। ऐलान के बगैर कैसा होगा? देखिए अगर नियत उसकी है कि जो भी मुझे ला देगा, बुनियादी बात ये है कि वो उसका मुस्तहिक नहीं है, लेकिन वो देता है तो जिसके साथ तय हुआ, जिसके पास ये खबर पहुंच चुकी है उसको देना वाजिब हो गया, और जिसके पास खबर नहीं पहुंची है उसको देना मुस्तहब हो गया। दोनों सूरतों में वो दे सकता है। इसमें